اسرائیلی کونسل جنرل کی رگوں میں کھولتا ہوا خون اس کی نسیں توڑے دے رہا تھا۔ غصے اور نفرت سے اس کو اپنا وجود دہکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آج تک ایسی ہزیمت کا منہ انہیں کبھی نہیں دیکھنا پڑا تھا جس ذلت سے وہ دوچار ہوئے تھے۔ اس کے سامنے وہ خط دھرا تھا جو آج کی خصوصی ڈاک سے موصول ہوا تھا، جس پر لکھا تھا بریگیڈیئر شمیر تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دینا کہ ابھی حماد اور ڈیبی کی موت کا انتقام ادھورا ہے۔ ہم بدلہ لینے کے لیے میدان کا انتخاب بھی خود ہی کرتے ہیں۔ جلد ہی بریگیڈیئر شمیر کو ایسی مزید خوشخبریاں بھی سنائی جائیں گی۔ بلیک ستمبر۔ اس خط سے پہلے کسی نے کونسل خانے میں فون کر کے موساد کے 4 درندوں کی موت کی خبر دی تھی اور درخواست کی تھی کہ ان کی لاشیں سڑنے سے پہلے اٹھا لی جائیں۔ بے بسی اور غصے سے اسرائیلی کونسل سوائے ہونٹ کاٹنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فوراً ہی یہ خط ایک مشین کے ذریعے تل اویو میں اس پیغام سمیت پہنچا دیا جو اسے ٹیلی فون پر موصول ہوا تھا۔ برطانوی پولیس نے ایک ہی دن میں 5 لاشیں دریافت کی تھیں۔ 5 لاشوں کی اطلاع انہیں ٹیلی فون پر ملی تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ ان تمام قتل کی وارداتوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ لیکن کیا تعلق ہے، اس سوال کا جواب انہیں تلاش کرنا تھا۔ 5 لاشوں کا پوسٹ مارٹم کروا دیا گیا۔ عراقی لڑکی کی لاش عراقی سفارت خانے کو، ڈیوڈ اور ہارس کی لاشیں اسرائیلی سفارت خانے کو اور دونوں مقامی یہودیوں کی لاشیں ان کے ورثاء کے حوالے کر دی گئیں۔ فی الوقت اس کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ صرف عراقی لڑکی کی موت کو خودکشی کا کیس قرار دیا گیا تھا، کیونکہ مرنے سے پہلے اس نے جو خط اپنے والدین کے نام لکھا تھا وہ اس کے سرہانے موجود تھا، اور خط اور زہر کی شیشی پر اس کی انگلیوں کے نشانات موجود تھے۔ دونوں بدماشوں کی موت البتہ مشتبہ تھی۔ بظاہر تو یہ خودکشی کا کیس دکھائی دیتا تھا، لیکن برطانوی پولیس کے ہونہار افسران نے جلد ہی سراغ لگا لیا کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ انہیں زہر پینے پر مجبور کیا گیا تھا۔ برطانوی حکومت کے لیے یہ معمولی کیس نہیں تھا۔ اسرائیلی حکومت نے زبردست احتجاج کیا تھا اور الزام لگایا تھا کہ حکومت اسرائیلی شہریوں کی مناسب حفاظت کا بندوبست بھی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اپنے دونوں شہریوں کی موت کی ذمہ داری فلسطینی تنظیم آزادی پر عائد کرتے ہوئے مغربی پریس میں یہ شوشہ بھی بڑی ہوشیاری سے چھوڑ دیا تھا کہ قاتلوں کو عراق کے سفارت خانے کی پشت پناہی حاصل ہے۔ ایک مخصوص اخبار نے اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب کہانی گھڑ لی تھی اور اس حادثے میں عراقی سفارتکار فیصل کو، جس نے حال ہی میں چارج سنبھالا تھا، ملوث کر دیا تھا۔ برطانوی قوانین کے مطابق برطانوی پولیس چونکہ اخبار سے اس کے ذرائع کے متعلق دریافت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے مجبور تھی۔ البتہ عراقی حکومت نے اس اخبار پر عراقی سفارت خانے پر جھوٹے الزامات لگانے کا الزام عائد کرتے ہوئے 50 لاکھ پاؤنڈ ہر جانے کا نوٹس جاری کر دیا تھا۔ برطانوی انٹیلیجنس کو موساد کی طرف سے باقاعدہ اطلاع مل چکی کہ عراقی سفارتکار فیصل یہاں سے ضروری سامان سمگل کر کے عراق پہنچانے کے مشن پر ہی لندن آیا ہے۔ اس ضمن میں ممکنہ کاغذات اور شواہد CIA اور MI5 دونوں کو پہنچا دیے گئے تھے۔ CIA کا دباؤ برطانوی انٹیلیجنس پر بڑھ رہا تھا کہ وہ اس معاملے کو یہیں روک لے۔ برطانوی انٹیلیجنس سائے کی طرح فیصل کے پیچھے لگ گئی تھی اور ایڈنبرا میں اس کی ابو احمد سے ملاقات کے بعد تو یہ لوگ زیادہ ہوشیار ہو گئے تھے۔ ان کی بدقسمتی تھی کہ ابو احمد ان کی گرفت سے نکل گیا۔ شاید اسے اپنے تعاقب کا علم ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے تعاقب میں آنے والوں کو ڈاج دے دیا تھا۔ ان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی اطلاع نہیں تھی کہ فیصل نے ایڈنبرا میں کسی عربی نقوش رکھنے والے نوجوان سے ملاقات کی ہے۔ یہ نوجوان کون ہے، اس کا علم انہیں نہیں ہو سکا۔ برطانوی حکومت پر دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا۔ بالآخر انہیں فیصل کو نان گریٹا پرسن یعنی ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر لندن سے نکالنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے جواب میں عراق نے 3 برطانوی سفارتکاروں کو بغداد سے ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر نکال دیا۔ بریگیڈیئر شمیر کے لیے موساد کے کیٹسا کی موت ناقابل برداشت صدمہ تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں اس بہیمانہ کارروائی کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی، خواہ اس کی کوئی بھی قیمت اسرائیل کو ادا کرنی پڑتی۔ اس نے موساد کو حکم جاری کیا، ابو احمد کو تلاش کرو، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو، پاتال سے آسمان کی بلندیوں تک اسے چھان مارو، کسی بھی نام کے ساتھ وہ یورپ میں سرگرم عمل ہے۔ یہ شخص ابو ندال کا دایاں ہاتھ ہے اور ہمیں اس ہاتھ کو توڑنا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ لندن میں سارا آپریشن اس کی نگرانی میں عراقی سفارت خانے کی معاونت سے طے پایا ہے۔ موساد کے کسی بھی کیٹسا کا قتل قابل برداشت نقصان نہیں۔ جاؤ اور دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، تمام بین الاقوامی قوانین پر لعنت بھیج دو۔ میرا حکم ہے کہ کسی کے حکم کی پرواہ نہ کرو اور ابو احمد کو ڈھونڈ کر مار ڈالو۔
मुझे बहर सूरत उसकी मौत की खबर जल्द अज जल्द मिलनी चाहिए। और हाँ, याद रहे कि ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मोसाद के सरबराह इसराइली वजीर आजम की ख्वाहिश है, जिसे पूरा करना हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। मोसाद के हेडक्वार्टर में वो उस वक्त फलस्तीन की आजादी के लिए सरगर्म मुजाहिदीन से निमटने वाले PLO के माहिरीन मोसाद के खुसूसी विंग गोल्ड फिश से मुखातिब था, जिसे मोसाद की अपनी जबान में सैफनीम कहा जाता है। बैरूत में बरसरे पैकार मुख्तलिफ ग्रुपों में से ईसाइयों के मजबूत ग्रुप के सरबराह बशीर जमाइल ने 1968 में मोसाद के साथ खुफिया मुआहिदे के तहत उसे अपने ज़ेर तसल्लुत इलाके नॉर्थ बैरूत में समंदर के किनारे जोनिया के मकाम पर एक खुफिया अड्डा कायम करने की इजाजत दी थी। इस अड्डे में मोसाद ने एक खुफिया नेवल रडार सिस्टम कायम कर रखा था। उसकी हिफाजत के लिए जमाइल की फौज फ्लैंगिस्ट के बहरूप में यहाँ मौजूद रहते थे। मोसाद को अपने इस खुफिया मिशन के क़याम के लिए अपनी तमाम तरजीहात को एक तरफ रख कर जमाइल की हर बात माननी पड़ी थी। नॉर्थ बैरूत के इस खुफिया मकाम पर जो बशीर जमाइल का हेडक्वार्टर था, मोसाद और फ्लैंगिस्ट ईसाइयों के दरमियान ये मुआहिदा तय पाया था कि न सिर्फ इसराइली फ्लैंगिस्टों को इस स्टेशन के क़याम के लिए 20 से 30 हजार अमरीकी डॉलर्स माहाना अदा करेगा, बल्कि इसराइल ने हैफा के फौजी बेस पर जमाइल के फौजियों को इसराइल में तैयार करदा खुसूसी गन बोट्स डाबर भी कीमतन दी थी, जिनके हुसूल के बाद ईसाई फौज की ताकत में कई गुना इजाफा हो गया था। बैरूत में मोसाद का खुफिया अड्डा ईसाइयों के जेर कब्जा मशरकी बैरूत और मुसलमानों के जेर कब्जा मगरबी बैरूत के ऐन दरमियान में एक सरकारी इमारत के तहखाने में कायम किया गया था, जिसे मोसाद की खुफिया जबान में आबदोज यानी सबमरीन कहा जाता था। उस अड्डे की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ हम वक्त मोसाद के 10 बेहतरीन दिमाग, जिनमें कम से कम 7 या 8 कैट्सा शामिल थे, सरगर्म अमल रहते थे, जिनमें से कम 2 का ताल्लुक इसराइली फौज के बेहतरीन और तबाहकुन यूनिट 4 और 5 से होता था। 1980 तक हालत ये थी कि वो न सिर्फ जमाइल बल्कि बैरी जुमलात और PLO के भी बाज कैंपों में मोसाद के खुफिया अड्डे कायम कर चुके थे, और अमलन मोसाद को ऐसी हैसियत हासिल हो गई थी कि वो लोग जब चाहें बैरूत में अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर सकते थे। CIA, शामी इंटेलिजेंस और दीगर मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियां खुद को बेबस महसूस करती थीं। बाद में होने वाले वाकयात ने साबित कर दिया कि बेशतर अमरीकी शहरियों के अगवा में भी मोसाद का ही हाथ था। अमरीकी इस बात की खबर रखने के बावजूद कि मोसाद उनको भी हाथ दिखा जाती है, उसके मोहताज रहते थे और मसलहतन खामोशी इख्तियार किए रहते थे, जिसकी बेहतरीन मिसाल 23 अक्टूबर 1983 को बैरूत एयरपोर्ट पर मर्सिडीज ट्रक बम का वो धमाका है जिसमें 241 अमरीकी मैरीन फौजी मारे गए थे। अमरीका की फौजी तारीख में 13 जनवरी 1968 के बाद ही एक रोज में मारे जाने वाले अमरीकी फौजियों की सबसे बड़ी तादाद थी। 13 जनवरी 1968 के रोज वियतनाम में एक ही दिन में 1246 फौजी मारे गए थे। इससे पहले या बाद में कभी एक ही दिन में इतनी ज्यादा तादाद में अमरीकी फौजी नहीं मारे गए। मोसाद को अपने खुसूसी जराए से इस बात का इल्म हो गया था कि बड़े मर्सिडीज ट्रक में गोला बारूद के जखीरे के साथ एक खुदकुश मिशन तरतीब दिया गया है, जिसमें अमरीकी फौजियों की हलाकत का सामान मौजूद है। मोसाद और CIA के दरमियान बाहमी ताउन के मुआहिदे के तहत मोसाद इस बात की पाबंद थी कि उसकी पेशगी इत्तला CIA को दे, लेकिन उन्होंने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए रखी। ये भी मोसाद की खुफिया प्लानिंग का हिस्सा थी। इस तरह इसराइली हुक्काम शाम और अमरीका के दरमियान पहले से मौजूद खलीज को इतना ज्यादा वसी कर देना चाहते थे कि फिर वो जब भी चाहें अपनी मर्जी के नताइज इस तनाजुर में हासिल कर लें। गोल्डफिश का सरबराह और मोसाद का कैट्सा इस मीटिंग में खुसूसी शिरकत के लिए बैरूत से आया था। थोड़ी देर बाद ही ब्रिगेडियर शमीर और कैट्सा एक अलहदा खुफिया मीटिंग कर रहे थे और शाम गए जब मुख्तलिफ रिपोर्टों का मुआयना, उन पर तफसीली बहस और बैरूत में फलस्तीनियों की ताकत का जायजा लेने के बाद वो एक अहम फैसले पर पहुंच गए, तो ब्रिगेडियर शमीर ने उसके साथ ही इसराइली वजीर आजम के साथ फौरन हॉटलाइन पर राब्ता कायम किया। सर, हमें इस फैसले पर अमल दरामद के लिए आपकी मंजूरी दरकार है। ऐन मुमकिन है कि इसके बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर आपको दबाव का सामना करना पड़े। उसने मंसूबे की तफसीलात से इसराइली वजीर आजम को आगाह करते हुए कहा। वजीर आजम ने कहकहा लगाते हुए जवाब दिया, कौन सा बैनुल-अक़वामी दबाव? अमरीकी हमारे मोहताज हैं और फलस्तीनी सिटिंग डक्स अरबों में अभी तक इतनी जुर्रत पैदा नहीं हुई। शमीर, अगले 48 घंटों में जो दिल चाहे कर गुजरो, नताइज की परवाह किए बगैर। ब्लैक सितंबर को भरपूर जवाब मिलना चाहिए, किसी भी कीमत पर। शमीर ने कहा, ठीक है जनाब, ऐसा ही होगा, और सिलसिला मुनक़ता हो गया। शमीर ने बैरूत से आए कैट्सा से कहा, कल सुबह हमारी तरफ से काम का आगाज हो जाएगा। उसी रात मोसाद का ये कैट्सा एक खुसूसी प्लान लेकर सरहद उबूर कर गया। रात के पहले पहर उसके साथियों ने बैरूत के तमाम गुंडा गिरोहों को अपने खुफिया मरकज पर जमा कर रखा था। आबदोस पर मौजूद इन गुंडों को मंसूबे की तफसीलात समझाने के बाद इस हुक्म
کے ساتھ शिकारगाहों की तरफ भेज दिया गया कि किसी के काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अलसुब इसराइली फौज ने मोसाद के ऑपरेशन सीफेक्स का आगाज कर दिया। अमरीकी असलहा खानों में तैयार करदा जहाज मगरबी बैरूत में वाक़े एक बड़े फलस्तीनी महाजर कैंप पर आतिशो आहन की बारिश शुरू कर चुके थे। ऑपरेशन सीफेक्स में इसराइली एयरफोर्स के 2 स्क्वाड्रन हिस्सा ले रहे थे। पहले बमबारों ने निहत्ते और बेगुनाह फलस्तीनियों पर सितम के पहाड़ तोड़े। उसके बाद फाइटर तैयारे हरकत में आए और इस कैंप में मौजूद हर काबिल जिक्र फलस्तीनी जांबाज पोस्ट को तबाह कर दिया। बेबस और बेकस फलस्तीनी कमांडोज अपनी बंदूकें और आर्म से असलहे के साथ इन आसमानी आफात का क्या मुकाबला करते। वो दीवानावार उन पर गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन ये सही ला हासिल थी। उनकी बरसाई हुई गोलियां सिवाय आसमान पर मखसूस गूंज पैदा करने के और कुछ ना कर सकी, या फिर खाली गोलियों के खौल थे जो वहां गिरते रहे। 2 घंटे तक ये मश्क सितम जारी रही। 2 घंटे बाद जब इसराइली दरिंदों को यकीन हो गया कि अब मजाहमत करने वाला कोई भी जांबाज जिंदा नहीं रहा, तो वो अपने ठिकानों पर वापस लौट आए। लेकिन अभी मोसाद के खून की प्यास नहीं बुझी थी। असल ऑपरेशन तो अब शुरू होने वाला था। अभी तो उन्होंने ऑपरेशन सीफेक्स के लिए सिर्फ फजा हमवार की थी। एन इन लम्हात में जब मजबूर फलस्तीनी माएं, बेटियां और बेवाएं अपने बच्चों और बड़ों की लाशों पर बैन कर रही थीं, बच्चे कुचे और जख्मी फलस्तीनी अपने शहीदों के जसद खाकी इकट्ठे कर रहे थे। एन इन लम्हात में बैरूत की मुख्तलिफ गुंडा फोर्सों के सैकड़ों की तादाद में मुसल्लह दरिंदे, जिन्हें मोसाद की आशीर्वाद हासिल थी, धाड़ते हुए इन कैंपों में दाखिल हो गए। उन्होंने यहाँ मौजूद हर फलस्तीनी जवान, बच्चे और बूढ़े के खून से होली खेलनी शुरू कर दी। अब ऑपरेशन सीफेक्स के तीसरे हिस्से पर अमल शुरू हुआ और बेबस मखहूर मुसलमान फलस्तीनी औरतों की इज्तिमाई आबरूरेजी शुरू हो गई। जिस किसी खातून ने दरिंदों के सामने मजाहमत की, उसको उन्होंने मार डाला। दरिंदगी का ये हौलनाक तमाशा शाम गए तक जारी रहा। इससे पहले कि दूसरे कैंप से बचे कुचे फलस्तीनी मुजाहिद इन बदनसीबों की मदद को पहुंचे, मोसाद के तरबियत याफ्ता गुंडे जिन ट्रकों में बैठकर आए थे, उन्हीं में बैठकर हवा में गोलियां चलाते अपनी फतह का जश्न मनाते फरार हो गए। अगले रोज इसराइली हुकूमत की तरफ से एक मुख्तसर सा बयान मामूल के मुताबिक जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया था कि लंदन में मारे जाने वाले बेगुनाह यहूदियों के कातिलों के ताक़ुब में इसराइली एयरफोर्स के जहाजों ने इन कैंपों पर बमबारी की है और आइंदा दुनिया के किसी भी गोशे में अगर फलस्तीनियों ने किसी यहूदी को कत्ल किया तो उसका इंतकाम भी इसी तरह लिया जाएगा। सिवाय ह्यूमन राइट्स की चंद नाम नेहाद तंजीमों और चंद मुसलमान हुक्मरानों की तरफ से मजम्मती बयानात के और कोई रद्द अमल सामने नहीं आया था। जब एक मुसलमान मुल्क की कोशिश से अक़वाम मुत्तहिदा में ये मसला ज़ेर बहस लाने की तहरीक पेश की गई, तो अमरीका बहादुर ने इसे वीटो कर दिया। एयरपोर्ट पर इराकी एयरलाइन की ये मामूल की परवाज थी, जिसे आज 2 बजे रवाना होना था। टर्मिनल नंबर 2 पर मुसाफिर अपना सामान एयरलाइन काउंटर पर चेक इन कर रहे थे और एयरलाइन का अमला मामूल के मुताबिक मुसाफिरों को नशिस्तें फराहम करने के साथ साथ उनका सामान जहाज में भेज रहा था। एयरपोर्ट सिक्योरिटी के अमले ने गो के यहाँ हिफाजत के खुसूसी इंतजाम कर रखे थे, लेकिन दुनिया की बेशतर फजाई कंपनियों ने अपना अलग से सिक्योरिटी स्टाफ भी भर्ती किया हुआ था, जो इनकी परवाजों को लंदन से बाहिफाजत उड़ाने का जिम्मेदार था। इन सिक्योरिटी कंपनियों के फराइज में ये बात भी शामिल थी कि वो किसी मुतल्लिका एयरलाइन के जहाज में रखे गए सामान पर खुसूसी नजर रखें, जहाज के मुसाफिरों की हरकत व सकनात नोट करें और कोई भी मुश्तबा मुसाफिर या सामान नजर आए तो मुतल्लिका परवाजों के जिम्मेदारों को इससे फौरन आगाह करें। हतमी फैसला बहरहाल मुतल्लिका जहाज की मालिक कंपनी को ही करना होता था। आज भी मामूल के मुताबिक लंदन से बगदाद जाने वाली परवाज पर मुसाफिरों का सामान चेक इन हो रहा था, जब अचानक बरतानवी इंटेलिजेंस के अहलकारों ने जो अलग सुबह यहाँ पहुंच गए, जहाज के मुसाफिरों की कतार में लगे एक मुसाफिर से अपना पासपोर्ट दिखाने की दरखास्त की थी। मुसाफिर ने कहा, लेकिन मैं पासपोर्ट दिखा चुका हूँ, 2 मरतबा पहले भी इमिग्रेशन वालों ने चेक किया है, अब आप आ गए हैं, आखिर आप मुझे क्यों तंग कर रहे हैं। मुसाफिर जो शायद पहले से इस सूरत हाल पर रंजीदा था, सरापा एहतजाज बन गया। इंटेलिजेंस के उस ऑफिसर ने दोबारा दरखास्त की, हमें अफसोस है लेकिन बराह करम आप हमारे फराइज की नौयत को समझते हुए इस बात का बुरा मत मानिए। मुसाफिर ने कहा, मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग 2 मरतबा मेरा पासपोर्ट देखकर मुतमईन नहीं हुए तो फिर कब होंगे। इमिग्रेशन से यहाँ आने तक में मेरा पासपोर्ट बदल तो नहीं गया, मेरा हुलिया अलबत्ता आपने जरूर बिगाड़ कर रख दिया है। मुसाफिर को अब तैश आने लगा था, उसने अच्छी खासी तकरीर शुरू कर दी थी। इस दरमियान जहाज के मुसाफिरों ने लाइन तोड़कर उसके गिर्द झमगट्टा लगाना शुरू कर दिया। खासी दिलचस्प और परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो गई थी। बरतानवी अफसर ने उसे वार्निंग दी, सूरत हाल कुछ भी रही हो, आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। मुसाफिर ने झटके से अपना पासपोर्ट
पासपोर्ट उसके हाथ में थमा दिया। ये लो और इसमें से जो निकालना है निकाल लो। ऐन उन लम्हात में जो सिक्योरिटी के तमाम अफराद और जहां मौजूद दीगर मुसाफिर ये तमाशा देख रहे थे, एक नौजवान जिसके हाथ में छोटा सा बैग और ब्रीफकेस मौजूद था काउंटर पर पहुंच गया। काउंटर पर मौजूद इराकी एयरलाइन के मुलाजिम को उसने मुस्कुराकर मखसूस अंदाज से सलाम अलैकुम कहा और अपना पासपोर्ट और टिकट उसके सामने रख दिए। काउंटर से जवाब मिला, ठीक है। काउंटर पर मौजूद जिम्मेदार ने उसका बैग चेक इन करने में बहुत फुर्ती का मुजाहिरा किया था। बाकी सब कुछ तो मामूल के मुताबिक था, लेकिन गैर मामूली बात सिर्फ ये थी कि काउंटर से ना तो इस मुसाफिर को बोर्डिंग कार्ड जारी हुआ था, ना ही सामान की क्लियरेंस का स्टिकर। ये सामान इससे पहले वाले मुसाफिर के खाते में डाल दिया गया था और स्टिकर काउंटर क्लर्क ने अपने पास रख लिया था। ये पुरस्कार मुसाफिर अबू अहमद था। इस बैग में इराकी हुकूमत का इंतहाई अहम सामान मौजूद था। ये सामान किसी मुसाफिर के बगैर सफर कर रहा था। ऐन उन लम्हात में जब अबू अहमद के नाम से सफर करने वाले एक और मुसाफिर को बरतानवी इंटेलिजेंस ने अपने घेरे में लेकर उस पर सवालात की बौछार कर दी थी। अबू अहमद चुपचाप टर्मिनल से बाहर आ गया। वो यहाँ सिर्फ सामान पहुँचाने आया था और इसी नाम के एक और इराकी इंटेलिजेंस के पासपोर्ट होल्डर ने इस ड्रामे में खुसूसी पार्ट अदा किया था। असली अबू अहमद की रवानगी के चंद मिनट बाद बरतानवी इंटेलिजेंस ने नकली अबू अहमद को भी क्लियर कर दिया, जिसने ये सबूत फराहम कर दिया था कि जिस अबू अहमद की तलाश बरतानवी इंटेलिजेंस को है, ये वो शख्स नहीं है। मुसाफिर ने तंजिया लहजे में अपना पासपोर्ट बरतानवी ऑफिसर के हाथ से थामते हुए कहा, मेरे ख्याल से मुझे ये आखिरी चेकिंग समझनी चाहिए। बरतानवी ऑफिसर ने अंग्रेजों की रिवायात को बरकरार रखते हुए कहा, शुक्रिया, आपको जो तकलीफ पहुंची हम उसके लिए माजरत खा हैं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।